Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to the course of Development Planning and Administration, MPA 403. Lecture is 18 and I am your facilitator, Professor Dr. Muhammad Majid Mahmood Pagram. So before we move on to our today's topic of discussion, let's have a brief reflection of our previous lecture. Okay, in our previous lecture, we have talked about one of the most important aspects of development planning and administration, and that is called monitoring and evaluation. Okay, monitoring and evaluation की जब हम बात करते हैं तो these are the most important aspects जब हम डेवलपमेंट प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग के लिए आपको जो एक मोस्ट क्रेडिबल जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन. Like for example, organizations having good monitoring and evaluation mechanisms, they are able to make more efficient and effective decisions as compared to those organizations who are not good in this. So for efficient and effective working and for improved, enhanced performance of employees, appropriate mechanism of monitoring and evaluation is required. So when we talk about strategies, when we talk about our plans, when we talk about, our output, when we talk about our outcome, we need to have strong monitoring and evaluation. So it is highly recommended that whenever we are designing any project, this is really very important that we must make monitoring and evaluation as one of the most important parts of it. So किसी भी plan को implement करने के लिए, उसको targets को achieve करने के लिए, monitoring and evaluation plays a very important role. हमने देखा कि जब आपके मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपके गोल्स हैं, सो उसको हमने डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर में, और हमने डिस्कस किया कि हाउ डू वी डिफरेंशिएट लाइक फॉर एग्जांपल आउटकम एंड आउटपुट. ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आउटकम एंड आउटपुट? व्हाट कम्स इन योर माइंड? ओके, आउटपुट इज द रिजल्ट. लाइक फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग कैसे है? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट. नाउ आउटपुट इज द रिजल्ट. सो जब एंड पे जो आपका रिजल्ट आ रहा है, दैट इज द आउटपुट. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय आउटकम? आउटकम मीन्स दैट in order to achieve that output, what is the impact on the performance of employees? जाहिर बात है कि आप अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए you do your best. So when you do your best, that has an impact on your performance. तो जो performance enhancement है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करते हैं कि आया कोई पॉजिटिव आउटकम है या नेगेटिव आउटकम है, लाइक फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस पे, तो वो पार्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो जब हम आउटपुट और आउटकम की बात करते हैं, तो मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन जो है, दैट हेल्प्स टू इंप्रूव द आउटपुट एंड आउटकम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन, which is delegation. So according to this this law, if you have a difficult task, give it to a lazy man, he will find an easier way to do it. Now this is a very interesting quotation. So if you have something really very difficult, you give it to a lazy man and he will find an easier way to do it. So people have, brilliant, unique brains. God has made all humans unique. So even the laziest person, he or she will, find an easy way out. So
This is one of the most interesting quotations, so I thought that I should share this with you. Now, human resources are the most important asset of any organization, and most human resources and business professionals understand this. But it is alarming how few are able to implement it. Why is this? Okay, when we talk about human resource, we think about other resources as well. Human resource, financial resource, physical resource, and information resource. So out of these four resources, the most important resource is human resource. Now, we all agree that HR is the most important asset of any organization in the world. But when it comes to the issues and problems of our human resources, like for example, having financial problems, having medical problems, having any other if any other problem in their home or in their office, now who is responsible to solve those problems? Like for example, some of the employees, they want to go for higher studies. Some employees, they have financial problems. Some of the employees, they are unhappy with their job responsibilities. There are many employees who are waiting for their promotions, things like that. So एक तरफ तो आप कहते हैं कि जी ह्यूमन रिसोर्स जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, तो क्या दूसरी तरफ जब उस ह्यूमन रिसोर्स की टेक केयर जो है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑफ कोर्स उस एचआर की टेक केयर करना, दैट इज द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिसीजन मेकर, दैट इज द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द top management of an organization. So you need to ensure that you are really helping out and you are really facilitating your human resources. Like for example के employees उनको अगर कोई educational benefits मिल रहे हैं, कोई एक wonderful opportunity मिल रही है studies के लिए, trainings के लिए, तो top management should support those employees. और अगर आप अपने employees को support नहीं कर रहे, अगर आप उनको फैसिलिटेट नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली एम्प्लॉइज की जो मोटिवेशन लेवल है वो डिक्लाइन होता है, एम्प्लॉय का जो लॉयल्टी लेवल है वो डैमेज होता है. सो एम्प्लॉइज को जैसे हम कहते हैं कि ताली दोनों हाथों से बजती है, तो डेफिनेटली जब हम बात करते हैं कि जी कहा जाता है मार्केटिंग में कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट, कस्टमर इज द किंग, कस्टमर इज द रियल बॉस. Now there are new theories on customer that says that customer is of two types: internal customer and external customer. Now external customer is your buyer and internal customer is your employee. Now in order to satisfy the external customer, first of all you need to satisfy the internal customer. Right? So when your internal customer is unhappy, for instance, now how he or she is going to make external customer happy? So in order to achieve your organizational goals and objectives, this is really very important that we need to work on satisfying our internal human resource. Now let us discuss about delegation. Delegation is the process that makes management possible, because management is the process of getting results accomplished through others. Very important. मैनेजमेंट को पॉसिबल करने के लिए, मैनेजमेंट को बेहतर रन करने के लिए डेलीगेशन इज रिक्वायर्ड, बिकॉज मैनेजमेंट में यू वांट टू ट्राई द and you want to get the best results out of your people. Now how you get best results? Like for example, you need to empower your employees, you need to delegate, you need to delegate your decision making authority, you need to delegate the authority, you need to delegate the powers. So
if there is one man show, like one person is making all decision, or if a small group of people are making all decisions and they are not delegating decision making authority, this really discourages the employee. They lose their motivation, and their loyalty of course weakens. So if we want to get the best out of people, like for example आप अपने बारे में सोचें कि जब like for example आप अपना बेस्ट पोटेंशियल कब यूज करते हैं, ओके किस सूरत हाल में आप अपने like for example आप वाकई बहुत ज्यादा एफर्ट पुट इन करते हैं, ओके जिस एक्टिविटी में आप की इन्वॉल्वमेंट हो, जिस एक्टिविटी में आपकी एक विलिंगनेस हो, जिस एक्टिविटी में आप हाईली मोटिवेटेड हो, जिस एक्टिविटी में आप एंजॉय कर रहे हो, तो उस एक्टिविटी में यू डू योर बेस्ट लेवल। नाउ अपनी बेस्ट एफर्ट्स पुट इन करने के लिए तो आपको क्या चाहिए कि यू नीड टू हैव दैट इनर सेटिस्फेक्शन। और इनर सेटिस्फेक्शन आपको कैसे आएगी? इफ यू गेट दैट डिसीजन मेकिंग पावर, you feel honored, you value yourself, you really feel honored। आपको लगता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको वैल्यू दे रही है, आपको वेट दे रही है, आपको ऑनर दे रही है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपके ऊपर ट्रस्ट कर रही है। तो जब इस तरह की सूरत हाल होती है, जब वो आपको ऊपर ट्रस्ट कर रही है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको वैल्यू दे रही है, अपनी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी आपको दे रही है, तो डेफिनेटली आप भी अपना बेस्ट इन रिटर्न परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो इन मोस्ट केसेस देयर इज अ ऑपोजिट सिचुएशन। एंड देन वी हैव द मैनेजरियल फंक्शंस। नाउ मैनेजरियल फंक्शंस को जब हम देखते हैं तो लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। ओके, let us discuss these 4 managerial functions one by one briefly. Now planning means developing goals and objectives, and then in planning you develop your strategies to achieve those goals and objectives. Now goals आप develop कर रहे हैं, उन goals के अंदर से objectives आप develop कर रहे हैं। Objectives are short term, goals are long term, and then you are developing strategies। आप अपनी एक हिकमत अमली बना रहे हैं in order to achieve your goals and objectives जो first step में आपने define की है। Okay, this is what planning is. And then organizing. Okay, the organizational structure, the organogram, like who reports to whom, who is to do what, how to do, things like that. So you do that activity in your organizing function. And the third is leading. Now who is a leader? A leader is a person who has followers. A leader is a person who takes initiative. A leader is a person who has the that capability, like for example who is like having better characteristics than others, like for example excellent communication skills, excellent problem solving skills, excellent analytical skills and things like that, who is a wonderful coach, who is a wonderful motivator, who is a wonderful mentor. Leadership. And then finally the fourth function of management is controlling. Controlling is of course monitoring and evaluation. You correct people. Okay, you tell people that okay, you need to follow a certain path, you need to follow the rules and regulations of the organization, and if somebody is not following those rules and regulations of the organization, of course you take corrective measures. This is what controlling is. So we further discuss on the topic that delegation, जब हम बात करते हैं, unless you delegate tasks to your subordinates, your team will become inefficient and demoralized. Straight and simple. जब तक आप अपने टास्क को, अपनी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को अपने सबऑर्डिनेट्स को डेलीगेट नहीं करते, आपकी जो टीम है, आपकी जो टीम मेंबर्स हैं, वो इनएफिशिएंट हो जाएंगे, उनका जो डीमोरलाइज हो जाएंगे. नाउ व्हाट इज द रीजन?
नाउ एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट है। हर एम्प्लॉय अपनी एक बेस्ट एफर्ट पुट इन कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उस बेस्ट एफर्ट को जब वो पुट इन कर रहा है तो डेफिनेटली उसका एक एक्सपेक्टेशन लेवल भी है कि इस ऑर्गेनाइजेशन से उसकी सर्टेन एक्सपेक्टेशंस हैं। अब जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होंगी, लाइक फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय ये चाहता है कि उसके ऊपर ट्रस्ट भी किया जाए, एम्प्लॉय ये चाहता है कि वो खुद डिसीजन ले, एम्प्लॉय ये चाहता है कि अब मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है, मेरी स्किल्स डेवलप हो चुकी हैं काफ़ी हद तक, तो अब मुझे भी इनिशिएटिव लेने का मौका दिया जाए। तो इनिशिएटिव लेने के लिए ज़रूरी है कि उसको डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी डेलीगेट की जाए, उसको मुख्तलिफ टास्क असाइन किए जाएं जिसके बारे में वो खुद से डिसाइड कर सके कि किस तरीके से उसने उसको मैनेज करना है। तो जब तक आप अपने एम्प्लॉयज़ को डेलीगेट नहीं करेंगे अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर, उस वक्त तक एम्प्लॉयज़ की बेटर परफॉर्मेंस को इंश्योर करना जो है वो काफ़ी मुश्किल काम है। I not only use all the brains I have, but all I can borrow, according to Woodrow Wilson. So what does it mean? I not only use all the brains I have, but all I can borrow. So this is only possible if you delegate. तो borrow करने के लिए जरूरी है कि you have to delegate. तो जब तक आप डेलीगेट नहीं करेंगे, जब तक आप लोगों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, उस वक्त तक बेटर ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं हो सकती, उस वक्त तक बेटर ऑप्शंस नहीं मिल सकते, उस वक्त तक एक बेस्ट पोटेंशियल को यूज नहीं किया जा सकता। तो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए, उनसे बेस्ट एक इनपुट लेने के लिए, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि आप उनको डेलीगेट करें। Now, why delegate? The world is a global village. We talk about globalization. Now, all the organizations are connected. You know, all the organizations of the world, they are dependent on each other. Now, आप कुछ भी करते हैं, like for example, आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप कोई भी सर्विसेज मार्केट में दे रहे हैं, तो you have, you know, the major competitors, you have the global competitors. So if you do not delegate, it means that you are compromising on the performance and you are not fully using the available brains, available resources in your organization. So in order to compete in the market, in order to, you know, remain in the market, and in order to become a market leader, this is really very important that you need to delegate. Otherwise you may lose the competition and you know, your performance declines and you lose your business, you lose everything. Information technology explosion, very important. इस वक्त दुनिया में टेक्नोलॉजी बहुत रैपिडली, you know, उसमें इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं, इनोवेशंस हो रही हैं। सो एक बहुत बड़ा एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सप्लोजन हम उसको कह सकते हैं यहाँ पे। तो इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो इन ऑर्डर टू, यू नो, गिव द बेस्ट क्वालिटी, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि टीम वर्क के ऊपर फोकस किया जाए बजाय ये कि वन मैन शो के ऊपर। तो आप जितना डेलीगेट करेंगे उतना ही ज़्यादा ब्रेन्स को आप इन्वॉल्व कर रहे हैं और इतनी ज़्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी से आप फ़ायदा ले सकते हैं। इंक्रीज्ड मर्जर्स हो रहे हैं दुनिया में, ऑफ कोर्स बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो मर्ज हो रही हैं, जिन कॉमन गोल्स, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, कॉमन विजन्स जो हैं वो आपस में मर्ज हो रहे हैं, एंड देन हाइटन कंपटीशन। ऑफ कोर्स इस वक्त हम बात करते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की, कि ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उसके अंदर भी, उसके बाहर भी उसके कंपेटिटर्स हैं, नेशनल लेवल के, लोकल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के। सो इट्स लाइक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सो कंपटीशन वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है, तो जब आपका जो कंपटीशन बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट जो मार्जिन है वो डिक्लाइन हो रहा है।
तो अपने प्रॉफिट मार्जिन को इम्प्रूव करने के लिए, अपने फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस को जब तक आप इम्प्रूव नहीं करेंगे, क्वालिटी को आप इम्प्रूव नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक आप अपने प्रॉफिट मार्जिन को इन्हांस नहीं कर सकते। तो एक हाइटेंड कंपटीशन की वजह से और एक ग्लोबलाइजेशन की वजह से और बहुत सारे जो फैक्टर्स आगे भी हम डिस्कस करेंगे, तो आप किस तरह से मुमकिन है कि आप अपने एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व किए बगैर, उनकी ब्रेन्स को आप अगर बेस्ट यूटिलाइज नहीं करेंगे, तो यू कैन नॉट कम्पीट इन द मार्केट। हायर एक्सपेक्टेशंस ऑफ नियरली एवरी कस्टमर। ना इस वक्त दुनिया में कस्टमाइजेशन का दौर है। हर कस्टमर की अपनी नीड्स एंड वांट्स हैं। हर कस्टमर आपको एक अपनी पर्सनलाइज्ड, इंडिविजुअलाइज्ड उसको प्रोडक्ट चाहिए, उसको सर्विस चाहिए। तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस कस्टमर की बढ़ रही हैं, क्योंकि ये वो कस्टमर नहीं है जिसकी लैक ऑफ अवेयरनेस है, जिसको मालूम कुछ नहीं है। आजकल के कस्टमर की जब हम बात करते हैं, तो आप कस्टमर के पास क्या है कि इंटरनेट है। कस्टमर इमीडिएटली देख लेता है कि जो प्रोडक्ट लेने जा रहा है, वो जो सर्विस वो यूज करने जा रहा है, तो व्हाट आर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, व्हाट आर द बेंचमार्क्स। तो कस्टमर उन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को आपके स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करता है और उसको इमीडिएटली पता चल जाता है कि आप कहां फॉल करते हैं। सो अपने कस्टमर को बेस्ट सर्विसेज देने के लिए, मार्केट से बेहतर सर्विसेज देने के लिए, अपने कंपैटिटर से बेहतर सर्विस देने के लिए, you need to have wonderful human resources in your organization जो कि continuous efforts कर रहे हैं, अपना best effort दे रहे हैं, अपना best potential use कर रहे हैं। तो ये कैसे मुमकिन है? Of course with the help of delegation, क्योंकि जब तक आप employees को अपनी authority, अपनी power आप delegate नहीं करेंगे, employee अपना best potential बाहर नहीं लेके आएंगे। So, in order to bring out the best out of employees, we need to delegate our authority to them. So, it just is not possible to still be that one person in control of everything. Bringing in others to manage is an absolute necessity for survival now. So, वो दौर गुजर गया कि one man show, कि एक पर्सन है जो ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहा है, एक पर्सन है जो तमाम डिसीजन ले रहा है, एक पर्सन है जो उसको कहते हैं कि जी ऑलराउंडर है। ये वो वक्त गुजर गया। अभी नाउ इस वक्त जब हम बात करते हैं, तो इट इज नॉट एन ऑप्शन कि आप डेलीगेट करेंगे या नहीं करेंगे। नाउ दिस इज समथिंग विच इज कंपल्सरी, दिस इज अ नेसेसिटी। ऑर्गेनाइजेशंस जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी अपना पावर्स को डेलीगेट करती हैं, अपने डिफरेंट मेजर टास्क को, सेंसिटिव टास्क को डेलीगेट करती हैं अपने एम्प्लॉयज को, दे मेक बेटर डिसीजंस। सो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की इस वक्त लड़ाई है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की इस वक्त गेम चल रही है पूरी दुनिया में। तो दैट इज ओनली पॉसिबल if your employees are participating in decision making. You must perform only essential activities that give the company its competitive advantage. Now, essential activities जो हैं, like top management, they may keep those activities with them, जो कि आपकी कंपनी को एक competitive advantage दे सकती हैं। Like for example, top management may work more on vision and top management may work on those intellectual skills and conceptual skills. उस पे आप फोकस करें और आप अपने competitive advantage के ऊपर काम करें। उसके अलावा जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसको डेलीगेट कर दिया जाए अपने सबऑर्डिनेट्स को, क्योंकि top management they should only focus on those most important activities जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को competitive advantage देती हैं। Learn to do less and manage more. आप लर्न करें कि आप मैनेजमेंट की तरफ ज्यादा फोकस करें, ना कि आप हर काम को, हर एक्टिविटी को अपने हाथ में ले लें। सो जो
टॉप मैनेजमेंट जो टॉप ब्रेन्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, दे नीड टू फोकस मोर के जो मैनेजरियल फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, तो उन मैनेजरियल फंक्शंस को फोकस करें और जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हैं, जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, जो रूटीन मैटर्स हैं, वो जो उसके जो मामलात हैं, डिफरेंट टास्क हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, उसमें जो डिसीजन मेकिंग है और अथॉरिटी है, पावर है, वो सबऑर्डिनेट्स को डेलीगेट करें. द डेलीगेशन टास्क इज इन फाइंडिंग द राइट पर्सन एंड गिविंग देम द राइट वर्क. ना इस वक्त एक बड़ा इसमें चैलेंज भी है कि आपको जिसको डेलीगेट करना है वो राइट पर्सन हो और उसको राइट वर्क दिया जाए, बजाय ये कि राइट पर्सन फॉर द रॉन्ग जॉब या रॉन्ग पर्सन फॉर द राइट जॉब ना हो. तो आपको राइट पर्सन को राइट वर्क आपने देना है कि यू नीड टू मैच. कि फॉर एग्जांपल आपने एक पर्सन ए को अगर डेलीगेट करना है तो जो टास्क, जो एक्टिविटी, जो अथॉरिटी आप उसको डेलीगेट करने जा रहे हैं वो उसमें मोस्ट कॉम्पिटेंट होना चाहिए और वो उसकी स्पेशलाइजेशन उसमें होनी चाहिए. तो उसका एक क्राइटेरिया आप सेट कर लेंगे whenever you want to delegate any power and authority to your subordinates. Now tasks you should not delegate, very important, कि कौन कौन से टास्क हैं जो कि आपने डेलीगेट नहीं करने. Following activities are sensitive and should not be delegated. For example, hiring. हम बात करते हैं हायरिंग की, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की. Now, according to research, this is what we recommend that you should not delegate, and the most important sensitive area is hiring. कि जब आप एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं तो एक लायबिलिटी आपकी बन जाती है डेफिनेटली, कि जिन एम्प्लॉयज़ को आपने हायर किया तो ऑफ कोर्स हायरिंग के बाद आप उनको ट्रेन करते हैं तो हायरिंग कॉस्ट इन्वॉल्व है, ट्रेनिंग कॉस्ट इन्वॉल्व है, फिर उसके अलावा उन एम्प्लॉयज़ के राइट्स डेवलप हो जाते हैं. तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप एम्प्लॉयज़ को हायर करें फिर आपको कुछ अरसे के बाद आपको लगे कि हायरिंग जो है वो इनकरेक्ट है, फिर आप उनको फायर करें, दोबारा आप हायर करें. तो एक तो ये कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व है, आपका एक्सपेंस इन्वॉल्व है, और दूसरा आपकी मार्केट रिप्यूट डैमेज होने का खतरा है. तो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि हायरिंग आप जो हैं वो डेलीगेट ना करें. फायरिंग, अगर आपने एम्प्लॉयज़ को सस्पेंड करना है, टर्मिनेट करना है, तो ये जो पावर है ये आप अपने हाथ में रखेंगे, एम्प्लॉयर अपने हाथ में रखेगा. सो फायरिंग जो टास्क है इट शुड नॉट बी डेलीगेटेड. पे इश्यूज, सो जो सैलरी के मामलात हैं, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स के मामलात हैं, ये एक्टिविटीज जो हैं, ये जो इश्यूज हैं, दैट शुड बी डेल्ट बाय द एम्प्लॉयर. इसको डेलीगेट ना किया जाए. पॉलिसी मैटर्स, डेफिनेटली जब हमने शुरू में बात की कि कंपैटिटिव एडवांटेज की जब हमने बात की तो देयर आर सर्टेन पॉलिसीज इश्यूज, लॉन्ग टर्म जो आपके इश्यूज हैं, जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, आपकी स्ट्रेटेजिक प्लान्स जो हैं, जो आपकी पॉलिसीज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, इनको आप डेलीगेट ना करें. सो दीज आर सम ऑफ द रिकमेंडेशंस फ्रॉम माय साइड व्हेन वी टॉक अबाउट डेलीगेशन. नाउ व्हाट आर द पॉसिबल एडवांटेजेस ऑफ delegation? Positive aspects of delegation include higher efficiency. Of course, जब आप अपने employees को delegate करते हैं तो they are more comfortable, they enjoy, they feel good, they feel honored, they feel कि जी उनको वैल्यू दी जा रही है ऑर्गेनाइजेशन में. तो जब उनको इस तरह की जारी बात है कि फीलिंग्स होती हैं तो इट इम्प्रूव्स देयर एफिशिएंसी. एंड एफिशिएंसी से क्या मुराद है कि विद मिनिमम आउटपुट दे ट्राई टू गेट द मैक्सिमम आउटपुट. तो एम्प्लॉयज बिकम मोर एफिशिएंट, बहुत एनर्जेटिक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा उनमें एनर्जी आ जाती है, एंड दे फील रियली हैप्पी. सो हायर एफिशिएंसी इज वन ऑफ द पॉसिबल एडवांटेजेस ऑफ डेलीगेशन. इंक्रीज्ड मोटिवेशन, एम्प्लॉयज को ऑफिस आने का दिल करता है, उनको ऑफिस में बैठने का दिल करता है, उनको ऑफिस के कामों में उनका ज्यादा दिल लगता है, वो ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं, वो क्वालिटी देने की कोशिश करते हैं.
तो डेफिनेटली मोटिवेशन होगी तो परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। और जब हम मोटिवेशन की बात करते हैं तो डेफिनेटली वी टॉक अबाउट क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। तो जो एम्प्लॉयज दे आर हु आर हाईली मोटिवेटेड, तो दे मूव टुवर्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। वो नए बेटर वर्किंग मेथड्स के बारे में सोचते हैं कि अपने टास्क, असाइन टास्क को, अपनी एक्टिविटीज को किस तरह बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सकें। सो इंक्रीज्ड मोटिवेशन हो जाती है whenever you delegate. It develops the skills of your team. Of course, जब आप delegate करते हैं तो sometime employee जो है उसको जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करनी पड़ सकती हैं। उसके अलावा जिन एम्प्लॉयज़ ने पहले कभी डिसीजन मेकिंग नहीं की, जब उनको डिसीजन मेकिंग टास्क दिया जाता है तो ऑफ कोर्स दैट बिल्ड्स देयर कॉन्फिडेंस लेवल, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड एट द सेम टाइम उनकी एक नई स्किल डेवलप होती है एंड दैट इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग स्किल। कि लाइक फॉर एग्जांपल, एक तो डेली मैटर्स हैं, उसके अलावा क्राइसिस सिचुएशंस हैं, उसके अलावा मुख्तलिफ सर्टन इवेंट्स हैं, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हैं, प्लान्ड इवेंट्स हैं। तो व्हेन दे डू दैट डिसीजन मेकिंग, सो दैट डेवलप्स देयर डिसीजन मेकिंग स्किल। बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क थ्रू द ग्रुप। ऑफ कोर्स एक इक्वालिटी आप लेके आते हैं, आप अपने टीम मेंबर्स को, अपने फॉलोअर्स को, आप अपना एक्टिविटीज़ को उनकी एक वर्कलोड जो है वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता और वर्कलोड को एक ऑलमोस्ट इक्वल बेसिस पे आप लेके चलते हैं एंड दैट इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ डेलीगेशन एंड फास्टर डिसीजन मेकिंग। ऑफ कोर्स अगर वन मैन शो है या कुछ लोग डिसीजन ले रहे हैं और उसमें डेफिनेटली डिलेज आते हैं, क्योंकि डिसीजन मेकर्स के पास एक लॉन्ग क्यू होती है फाइल्स की। तो जब तक आप डेलीगेट नहीं करते तो जो बेस्ट परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे डेलीगेट टू देयर सबऑर्डिनेट्स। तो फिर क्या है कि डिसीजन मेकिंग इज मच फास्टर, क्योंकि जो डेली रूटीन के माइनर इश्यूज हैं उसके ऊपर उन्होंने डेलीगेट किया होता है। सो वो लॉन्ग क्यूज नहीं होती वहाँ पे। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कोई फाइल आई है और उस फाइल के ऊपर डिसीजन होना है तो वो क्विकली जो है उसको रिस्पॉन्ड कर दिया जाता है, क्योंकि आपने अपने सबऑर्डिनेट्स को डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी डेलीगेट की हुई है। तो डिसीजंस जो हैं वो क्विकली जो हैं वो किए जाते हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ पे अप्रोप्रिएट डेलीगेशन की जाती है। Further advantages of delegation are the organization increased productivity. Of course, जैसे हमने पहले बात की कि हर ह्यूमन बीइंग को अल्लाह ताला ने यूनिक बनाया है और every human being has wonderful potential. Now उस पोटेंशियल को बाहर कैसे लेके आया जाए, और बाहर लाने के लिए delegation is one of the most important and effective methods organizations can use. So productivity increase कैसे होगी? जब performance increase होगी। और performance increase कैसे होगी? जैसे हमने पहले बात की कि motivation level employees का increase होगा। So with the help of adequate delegation we can increase the productivity levels of an organization. The department team की जब हम बात करते हैं they become more enthusiastic, active and successful. Of course, एक उनमें they become more energetic, they become more active, and of course they try their best to be more successful, and that is possible with the help of delegation. Now, जब हम बात करते हैं कि एनर्जी कैसे आती है, कि like for example एक sense of ownership develop होता है। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ ये नहीं समझते कि you come here for work, आप ये फील करते हैं कि दिस इज नाउ माई फैमिली, सो आई एम वर्किंग एज ए फैमिली मेंबर इन माई ओन ऑफिस। तो आप चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, और जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो डेफिनेटली यू बिकम मोर प्रोएक्टिव और आप बेटर डिसीजन मेकिंग करते हैं, बजाय ये कि एक लाताल्लुकी हो कि आप कहें कि ठीक है चूंकि मैंने डिसीजन नहीं लिया तो जो भी उसके रिजल्ट्स हैं तो ये मेरा डिसीजन नहीं था, तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन व्हेन यू आर इन्वॉल्व और व्हेन यू आर मेकिंग डिसीजंस तो डेफिनेटली एक इन्वॉल्वमेंट होती है, आप उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करते हैं, रियलाइज करते हैं और आपकी डेफिनेटली उसके अंदर फिर आपका एक इन्वॉल्वमेंट होती है और जब आपकी इन्वॉल्वमेंट होती है दैट रियली एक्टिवेट्स यू. नाउ टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉइज कैरियर डेवलपमेंट एंड इंक्रीजेस एनर्जी लेवल कि कैरियर डेवलपमेंट होती है. सो एम्प्लॉइज विद द हेल्प ऑफ डेडिकेशन दे कैन डेवलप देयर कैरियर्स because that improves their decision making skill, and people who become good decision makers, of course one of the most important benefit they can get is that they develop their careers and it also increases their energy level. Now some further advantages of delegation in organization: build human resource capabilities. आप human resource की capabilities को आप build कर रहे हैं कि हर ह्यूमन रिसोर्स की सर्टन कैपेबिलिटीज हैं और उस कैपेबिलिटीज को आप स्ट्रेंथन कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डेलीगेशन. इनकरेजिंग रेडिकल आइडियाज एंड रिस्क टेकिंग. ओके, यहाँ पे ये चीज बतानी बहुत जरूरी है कि व्हेन व्हेन यू डेलीगेट पीपल दे हैव low resistance to change and they try to take more risk when you delegate, and that encourages radical ideas, बिल्कुल unique and बिल्कुल एक different ideas promote होते हैं organization में और employees they are willing to take more risk and that is only possible कि आपने उनको delegate किया हुआ है. क्योंकि अगर आप डेलीगेट नहीं करते तो नॉर्मली जो रेडिकल आइडियाज होते हैं या रिस्क टेकिंग है वो कम हो जाता है. लेकिन वंस यू डेलीगेट इफेक्टिवली सो दैट रिजल्ट्स इन encouragement of radical ideas and there are employees who are willing to take more risk. जैसे हम कहते हैं कि higher risk higher gains and lower risk lower gains, so same is true here. So delegation also improves employee performance to an optimum level. Employee जब अपने best potential को बाहर लेके आता है, अपनी एक best efforts put in करता है, so that of course brings the employee performance at a maximum level. There are bright chances. Being a stronger, more productive company. कंपनी जो है बहुत स्ट्रांग हो जाती है, उसकी एक मार्केट रिप्यूट एक स्ट्रांग होती है, उसका मार्केट शेयर स्ट्रांग होता है क्योंकि एक मैसेज जाता है मार्केट को कि इन दिस कंपनी एम्प्लॉयज जो हैं उनको डिसीजन मेकिंग का अख्तियार है, एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व किया जाता है डिसीजन मेकिंग में. टॉप मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज को ना सिर्फ सपोर्ट करती है बल्कि उनके ऊपर ट्रस्ट करती है एंड थिंग्स लाइक दैट. और मार्केट के अंदर जो बेस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं नाउ दे आल्सो विश के वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें. सो उसकी मदद से हम ये कह सकते हैं कि ना सिर्फ ये कि आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज जो हैं वो आपकी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंथ बनते हैं और जो आपके पोटेंशियल एम्प्लॉयज हैं जो मार्केट में बेस्ट रिसोर्सेज हैं दे आल्सो शो विलिंगनेस कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं. सो जो बेस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज हैं मार्केट में अवेलेबल उनकी भी ख्वाहिश होती है कि वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में अपना कैरियर डेवलप करें जो उन पर ट्रस्ट करे, उनको वैल्यू दे, उनको अपनी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी डेलीगेट करे. तो अल्टीमेटली क्या होगा विद द हेल्प ऑफ डेलीगेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है इट बिकम्स मोर स्ट्रॉन्गर, मोर प्रोडक्टिव, हैंडलिंग चेंज इजीली एंड इनकरेजिंग ग्रोथ. ऑफ कोर्स जब हमने पहले बात की कि रेडिकल आइडियाज और रिस्क टेकिंग जो है वो इनकरेज होता है इन द रिजल्ट ऑफ डेलीगेशन, तो definitely whenever you bring in any change in your organization there is always resistance to change. So how to minimize, how to overcome resistance to change, and that is only possible when you delegate. Because when you delegate people develop, employees develop a sense of ownership, and once employees develop sense of ownership they go easy with changes and that encourages their growth, bringing out the very best in people and unlocking potential. तो लोगों का जो बेस्ट चीज है उसको वो उसमें डेफिनेटली उसको लेके आती है डेलीगेशन एंड देन अनलॉकिंग पोटेंशियल. तो एम्प्लॉइज का जो
पोटेंशियल है वो अनलॉक होता है, क्योंकि यहाँ पे रिसर्च ने ये भी प्रूव किया कि कुछ ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जिनको अपने पोटेंशियल का अंदाजा ही नहीं होता। लाइक फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉयज चूंकि उस फेज में कभी डिसीजन मेकिंग के फेज में खुद से उन्होंने डिसीजन मेकिंग नहीं की होती, तो जब वो डिसीजन मेकिंग करना शुरू करते हैं तो एक उनको उनकी आई ओपनर टाइप होता है कि उनको खुद भी पता चलता है कि ओ माय गॉड कि नाउ आई एम आई कैन डू सच एंड सच एक्टिविटीज जिसके बारे में पहले मुझे अंदाजा नहीं था। सो दैट इज कि वो उनका एक जो हिडन पोटेंशियल है उसको अनलॉक करने में डेलीगेशन रियली हेल्प्स अ लॉट। नाउ these are the 4 stages to successful delegation, and we are going to discuss these stages one by one. And the first stage to successful delegation is assume that people who work for you have ability and show you have confidence in them. सबसे पहले तो आप assume करें कि जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं उनके पास they have wonderful abilities, and you also show them कि आप उनके ऊपर कॉन्फिडेंस है आपको, and you really trust your employees. Now if you do not assume this thing, you cannot move towards delegating your authority and power to your employees. So this thing is really very important that you need to assume this thing, and then be specific about what is expected. Tell the person what should be done, why it is needed, and when it should be completed. Now अपनी expectations को आपको बहुत specific होना पड़ेगा अपने employees के साथ, उनको बिल्कुल एक clear cut बताएं कि what should be done, आप क्या चाहते हैं उनसे, why it is needed, और जो एक्टिविटी आप उनसे करवाना चाहते हैं उसकी ज़रूरत क्यों है, and then when it should be completed, और उनको आप टाइम लिमिटेशंस बताएंगे, आप उनको डेडलाइंस बताएंगे। तो आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को, अपनी रिक्वायरमेंट्स को, अपनी डेडलाइंस को आप डायरेक्टली कम्युनिकेट करेंगे उन एम्प्लॉयज़ को जिनको आप अपनी अथॉरिटी पावर डेलीगेट करने जा रहे हैं। नंबर 3, थर्ड स्टेज इज टेल एम्प्लॉयज़ व्हाट शुड बी डन बट डोंट टेल देम हाउ। वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने एम्प्लॉयज को ये तो बता सकते हैं कि आप उनसे क्या करवाना चाहते हैं, बट उनको ये मत बताएं कि वो जो एक्टिविटी आप उनसे करवाना चाह रहे हैं उसको उन्हें किस तरह करना चाहिए। लेट देम डिसाइड, लेट देम मेक डिसीजंस, एंड आई कैन अश्योर यू दैट कि जब आप अपने एम्प्लॉयज को ये कहेंगे कि जी एक्टिविटी ए आप करके मुझे दें, तो आप उनको तरीका ना बताएं, आप उनको मेथड ना बताएं, लेट देम डू इट, लेट देम हैंडल इट, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड इंशाल्लाह दैट दे विल कम अप विद वंडरफुल रिजल्ट्स। गिव क्रेडिट एंड प्रेज जनरसली इफ अ पर्सन डज ए गुड जॉब। अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम करता है तो आप उसको क्रेडिट दें और उसको जनरसली प्रेज करें, बजाय ये कि आप उसको प्रेज ना करें, आप उसको क्रेडिट ना दें, तो उसका मोटिवेशन लेवल बहुत डिक्लाइन हो जाएगा। सो दीज आर द 4 स्टेजेस टू सक्सेसफुल डेलीगेशन। आई रिपीट कि सबसे पहले स्टेज नंबर 1 में आपने अपने एम्प्लॉयज की एबिलिटी के ऊपर ट्रस्ट करना है और आप उनको शो करें कि आप अपने एम्प्लॉयज की इज्जत करते हैं और आपको अपने एम्प्लॉयज के ऊपर यकीन है। देन आप अपने एम्प्लॉयज को क्लियर कट बताएं कि आप उनसे क्या, आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, आपकी क्या नीड्स हैं, और आप उनको टाइम लिमिटेशंस बताएं, डेडलाइंस बताएं, जो भी एक्टिविटी आप उनसे करवाना चाह रहे हैं। अपने नंबर 3 स्टेजेस उनको एम्प्लॉयज को जरूर बताएं कि व्हाट दे शुड डू, बट उनको don't tell them कि how they should perform their activities. So this will bring in more creativity and more innovation. And finally stage number 4 जो है कि जो employees best perform करते हैं उनको आप financial non-financial rewards दें और उनको credit दें, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो definitely उनका motivation level जो है वो damage होने के chances हैं। Now let us have a brief look on the disadvantages of poor delegation. Now poor delegation की जब हम बात करते हैं, signs that your delegation is failing include
ह्यूमन रिसोर्स मोरल इज डाउन। जब ह्यूमन रिसोर्स का जो मोरल है वो डाउन होना शुरू हो जाता है, डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, दैट मीन्स दैट योर डेलीगेशन इज पुअर। यू आर ऑलवेज वर्किंग लेट। अगर आप रूटीन में लेट काम कर रहे हैं, एक तो वो ये है कि कभी कभार लोग ऑफिस में लेट हो जाते हैं, कभी कभार लेट सिटिंग करनी पड़ती है, दैट इज नॉर्मल। लेकिन अगर हमेशा ही आप ऑलमोस्ट ज्यादातर दिनों में आप लेट घर जा रहे हैं, ऑफिस में आप लेट सिटिंग कर रहे हैं, इसका मतलब है कि दैट इज द रिजल्ट ऑफ पुअर डेलीगेशन। योर टीम इज कंफ्यूज्ड, कॉन्फ्लिक्टिंग, टेंस। आपके जो टीम है जिनको आप डेलीगेट आपने किया है पुअरली, वो कंफ्यूज है, डाउट में है, टेंस है, उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने करना क्या है। So, of course, that results in poor performance. Not delegating a task because you think that you would do it better than anyone else is a poor excuse. Doing this will just make life difficult for yourself. Very interesting finding that अगर आप ये समझते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई टास्क आपसे बेहतर नहीं कर सकता, इसलिए उस टास्क को आप डेलीगेट नहीं कर रहे, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज करेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी अपनी लाइफ को ट्रबल में डाल देगा। जिन लोगों की ये सोच होती है कि आई एम द बेस्ट और मेरे से बेहतर कोई काम नहीं कर सकता, उनको अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो है उनमें क्वालिटी के इश्यूज भी आ जाते हैं, और डेफिनेटली उनका जो बाकी टीम मेंबर्स हैं उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डिक्लाइन हो जाता है। तो इस तरह की एक्सक्यूजेस, जो पुअर एक्सक्यूजेस हैं, वो नहीं होनी चाहिए। Now, continuing our discussion on disadvantages of poor delegation, limitations of this approach is assigning authority does not mean that someone has the ability, motivation, and understanding necessary to perform. Now, when you delegate, it does not mean that कि किसी के पास ability है, motivation है, understanding है, which is necessary to perform the activities in the most efficient and effective manner. So, what do we conclude from this slide? Like, delegation करने से पहले you need to ensure that कि जिसको आप delegate कर रहे हैं उसके पास ability है, motivation है, और उसके पास वो तमाम necessary skills हैं जो कि require होती हैं उस certain task को perform करने के लिए जो आप उसको delegate करने जा रहे हैं। Now, 6 steps to motivation. Let us discuss these steps one by one. The following steps can be taken to help achieve and maintain motivation. First thing is provide opportunities for human resources. Very important. I always say one thing that in order to motivate employees, in order to motivate human resources of an organization, you need to create a motivating environment in which people get motivated automatically, and these 6 steps will help you design that motivating environment. And the first thing is कि आप अपने ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अनसर्टेनिटी होगी, अगर एम्प्लॉयज को पता ही नहीं है कि व्हेन दे आर गोइंग टू गेट द प्रमोशन, अगर एम्प्लॉयज को ये नहीं पता कि इस ऑर्गेनाइजेशन में वो आगे कब बढ़ेंगे, उनका फ्यूचर क्या होगा, उनकी कैरियर डेवलपमेंट कब होगी, तो अगर इस तरह की अगर अनसर्टेनिटी होगी तो दैट विल डैमेज और दैट विल decline their motivation level. So in order to increase motivation of your employees, you need to provide opportunities for your human resources. Number 2 step is indicate the importance, value of the human resources. Integrity and ego of your employees is the most important thing. मैं अक्सर एक बात करता हूं कि आपकी
इज्जत दूसरों के सामने उतनी ही होती है जितनी आप अपनी खुद इज्जत करते हैं। और जो लोग अपनी बहुत इज्जत करते हैं वो बहुत सोच समझ के बात करते हैं, वो बहुत सोच समझ के डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो यही रूल ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्लाई होना चाहिए कि अपने एम्प्लॉयज जो हैं उनकी इंपॉर्टेंस, उनकी वैल्यू जो है उसको आप इंडिकेट करें, उसको आप मेंशन करें, उनको आप अप्रिशिएट करें। और जब आप अपने एम्प्लॉयज को वैल्यू देना शुरू करेंगे, उनकी इंपॉर्टेंस को आप अप्रिशिएट करेंगे, तो डेफिनेटली देयर मोटिवेशन लेवल विल इंक्रीज। मेक पीपल फील दे आर इंपॉर्टेंट। लोगों को फील कराएं, उनको एहसास कराएं कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये आप कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप जॉब कर रहे हैं या आपके एल्डर्स जॉब कर रहे हैं, तो आप उनसे भी ये डिस्कस कर सकते हैं कि हाउ टू मेक पीपल फील दे आर इंपॉर्टेंट। लाइक फॉर एग्जाम्पल इन ऑफिस मीटिंग्स वन कैन अप्रिशिएट कि लाइक फॉर एग्जाम्पल पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी डिड द बेस्ट फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। आप उनको अप्रिशिएट करें। मुख्तलिफ गैदरिंग्स में आप इंडिकेट करें कि जो लोग आपके बेस्ट परफॉर्मर्स हैं उनको आप अचीवमेंट अवार्ड्स दे सकते हैं। आप उनको लाइक फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ मीटिंग्स में आप उनको इनवाइट कर सकते हैं। आप उनको मुख्तलिफ लाइक फॉर एग्जांपल डिसीजन मेकिंग में आप अपने साथ शामिल कर सकते हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। तो यू नीड टू मेक योर पीपल फील दैट दे आर इंपॉर्टेंट, यू नो। और जब तक आप अपने एम्प्लॉयज को ये फीलिंग नहीं कराएंगे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज नहीं होगा। सो यू नीड टू मेक देम फील दैट दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। क्लैरिफाई गोल्स, यू नो, दिस इज अ मेजर इशू जब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली पब्लिक सेक्टर की। तो पब्लिक सेक्टर में ये चीज देखी गई कि जो गोल्स क्लैरिटी जो है वो काफी एक बड़ा चैलेंज है। तो एक क्लैरिफाई होने चाहिए गोल्स। उसके लिए यू कैन कंडक्ट यू नो ट्रेनिंग वर्कशॉप्स, उसमें जो गोल्स हैं उसको डिफाइन किया जाए, उसको एग्जांपल्स के साथ कोशिश की जाए कि जो एम्प्लॉयज हैं उनको अंडरस्टैंडिंग लेवल पे लाया जाए कि गोल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं एंड ऑर्गेनाइजेशन उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है। आइडेंटिफाई प्रोग्रेस, एम्प्लॉयज को बताएं कि उनकी प्रोग्रेस एग्जिस्टिंग क्या है, उनकी पास्ट प्रोग्रेस क्या थी, फ्यूचर में उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। एंड देन फाइनली नंबर 6 स्टेप ऑफ मोटिवेशन इज एक्नॉलेज अचीवमेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, you must acknowledge the achievements of your employees. आप जितना उसको ज्यादा एक्नॉलेज करेंगे एम्प्लॉयज उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर परफॉर्म करेंगे इन रिजल्ट ऑफ इनहांस्ड मोटिवेशन। सो हमने ओवरऑल डिस्कस किया कि दीज आर द 6 स्टेप्स टू मोटिवेशन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। Now, disadvantages of poor delegation are the involved parties coming to you angry and confused. Delegating a project to one department is likely to have implications for other departments. Keep it in mind as you delegate. Now, very important point here that कि आप जब भी delegate करेंगे तो किसी एक डिपार्टमेंट को या कुछ पर्सन्स को जब आप डेलीगेट करते हैं, पावर एंड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी या कोई टास्क आप डेलीगेट करते हैं, तो इट हैज ए इम्पैक्ट ऑन अदर डिपार्टमेंट्स एंड अदर पर्सन्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। तो उन तमाम पॉसिबल इफेक्ट्स को आपने पहले से उनको कैलकुलेट करना है, फोरकास्ट करना है, और उन तमाम जो इंटरडिपेंडेंट हैं डिपार्टमेंट्स जिनका एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आप एक डिपार्टमेंट को अगर कोई टास्क देते हैं, डेलीगेट करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट दूसरे डिपार्टमेंट पे भी है। तो डेफिनेटली इन तमाम इम्पैक्ट्स को आपने पहले से कैलकुलेट करना है और उसके बाद आप डेलीगेट करेंगे, क्योंकि ये ना हो कि डेलीगेट आप कर दें और उसके बाद जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिव आ जाए। तो दैट विल रिजल्ट इन पुअर डेलीगेशन और परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट की बजाय
परफॉर्मेंस डिक्लाइन की तरफ ना चला जाए, और दूसरा एम्प्लॉइज जो हैं वो कहीं they may lose their temper, they may get angry, or they may get confused कि उनको फिर समझ नहीं आ रही कि वो उनसे क्या टॉप मैनेजमेंट चाह रही है, उनसे वो इस टास्क को कैसे परफॉर्म करेंगे, क्योंकि when it has a negative impact on the other department. And then of course some people they get angry कि for example के एक डिपार्टमेंट है, उसको जब आप टास्क डेलीगेट करते हैं तो दूसरा डिपार्टमेंट जो भी उसी इक्वल लेवल के ऊपर है, दे में ऑब्जेक्ट कि जी वी आर इन इक्वल पोजीशन, तो उनको क्यों टास्क डेलीगेट किया गया, हमें क्यों नहीं डेलीगेट किया गया. सो पीपल गेट एंग्री. सो यू नीड टू थिंक अबाउट इट एंड एंश्योर दैट कि जब भी आप डेलीगेट करें आपने तमाम डिपार्टमेंट्स को, तमाम पर्सन्स को देखना है कि उनका आपस में एक दूसरे पे इम्पैक्ट क्या है, डिपार्टमेंट का आपस में क्या एक रिलेशन है, क्या हायरार्की है, उसके बाद आप डेलीगेट करेंगे. अदरवाइज दिस विल गिव यू a lot problems. Another disadvantage of poor delegation is deliberate redundancy. Now, if you are thinking that assigning the same task to multiple managers inspires healthy competition, you are sadly mistaken. This type of delegation actually inspires conflict. एक ही टास्क अगर आप बहुत सारे लोगों को दे देंगे तो बजाय एक हेल्दी कंपटीशन होने के ये कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन इख्तियार कर लेगा, क्योंकि जब एक टास्क आपने एक ही टास्क को मुख्तलिफ लोगों को दे दिया तो वो अपनी अपनी रिपोर्ट्स के साथ, अपनी अपनी एफर्ट्स के साथ वो अपनी रिपोर्ट्स को, अपनी एफर्ट्स को प्रेजेंट करेंगे, सबमिट करेंगे, और डेफिनेटली आपने उनमें से कुछ किसी रिपोर्ट को आपने नंबर 1 पोजीशन पे रखना है, किसी को नंबर 2 पे रखना है, तो दिस विल क्रिएट कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन. तो बजाय ये कि आप एक अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हों और एक अनहेल्दी किस्म की एक्टिविटी शुरू हो जाए, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट कि जो भी टास्क है वो एक ही जगह पे दिया जाए. हाँ, उसमें एक काम आप कर सकते हैं कि आप अपनी गाइडलाइंस साथ अटैच कर सकते हैं, आप उनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं, आप उनकी अपनी, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि आप अपनी नीड्स को, अपनी एक्सपेक्टेशंस को क्लैरिफाई करें, आप अपने डेडलाइंस दे सकते हैं. तो एक टास्क एक वक्त में एक ही डिपार्टमेंट को या कुछ स्पेसिफिक लोगों को दिया जाए, बजाय ये कि आप मुख्तलिफ लोगों को सेम टास्क दे दें, एंड बजाय ये कि प्रोडक्टिव एक कंपटीशन होने के वो एक अनहेल्दी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी. So another disadvantages of poor delegation are much like parents who do a child's homework thinking they are helping. अक्सर ये देखा गया कि बच्चे को जब होमवर्क दिया जाता है तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो होमवर्क खुद कर देते हैं, एंड दे बिलीव कि वो बच्चे की हेल्प कर रहे हैं. तो अगर आप इसके ऊपर थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग करें तो यू विल रियलाइज दैट कि आप अपने बच्चे के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं, आप उसकी लर्निंग के अंदर रुकावट बन रहे हैं, आप उसको मोटिवेट करने की बजाय आप उसको दूसरी नेगेटिव साइड पे लेके जा रहे हैं. तो बजाय ये कि बच्चा खुद लर्न करे, खुद मेहनत करके आगे आए, अगर आप उसका काम करके देंगे तो उसकी लर्निंग कब होगी, कैसे होगी. सेम इज द केस विद डेलीगेशन. You need to assign the task to the right person for the right work, and let him or her do the task in his or her own way. आप टास्क असाइन करें, आप अपनी गाइडलाइंस दें, अपनी एक्सपेक्टेशंस बताएं, अपनी नीड्स बताएं, डेडलाइंस बताएं, टाइम डेडलाइंस, एंड देन let the person handle the task. When you delegate responsibility, delegate the earned positive negative consequences. तो जब आप डेलीगेट करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो उसके पॉजिटिव नेगेटिव जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भी आप डेलीगेट करें. सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट
कि जब आप किसी को कोई टास्क असाइन कर रहे हैं तो उसके पॉजिटिव नेगेटिव्स भी आप उसको बताएं, उसको डेलीगेट करें, ताकि उस पर्सन को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल उसमें बनाया जाए, ताकि वो ज़्यादा उसको एक रिस्पॉन्सिबल वे से उसको टास्क को हैंडल करे। डेलीगेटिंग टू वीकनेस, delegating tasks outside the scope of one's competence. Now, every employee has certain strengths and weaknesses. तो जब एक ऐसे एम्प्लॉय को आप डेलीगेट करेंगे जो कि बियॉन्ड हिज और हर कॉम्पिटेंस लेवल है, तो दैट विल क्रिएट बिग प्रॉब्लम टू द ऑर्गेनाइजेशन. Classic example of this include putting the financial officer in charge of marketing. वेरी सिंपल कि जो फाइनेंशियल ऑफिसर है, जिसकी कॉम्पिटेंस, जिसकी स्किल, जिसकी क्वालिफिकेशन, जिसका एक्सपीरियंस फाइनेंशियल मैटर्स में है, अगर आप उसको मार्केटिंग का हेड लगा देंगे तो देन ऑफ कोर्स यू कैन वेल इमेजिन कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ क्या होने जा रहा है. सो what you need to do is you need to delegate the right task to the right person for the right job responsibility. Like for example, एक मार्केटिंग ऑफिसर को तो आप इंचार्ज लगा सकते हैं मार्केटिंग का, लेकिन फाइनेंशियल ऑफिसर को अगर आप इंचार्ज लगाएंगे मार्केटिंग का तो दैट विल क्रिएट मैनी प्रॉब्लम्स फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन. तो डेलीगेशन का फायदा होने की बजाय आपको उसका बहुत ज्यादा नुकसान होने का यहाँ पे अंदेशा है. Now moving toward the conclusion of our today's discussion on delegation. Effective delegation will enable you to develop good people. कि जब आप एक effective delegation करते हैं तो you develop good people. कि जो आपके best human resources हैं, you are increasing their motivation level, you are increasing their confidence level, you are giving them value, they are feeling honored, and of course that develops people. It will save you time. Top management, जैसे हमने पहले बात की, they need to focus more on those tasks and activities which are required to get the competitive advantage for the company. और जो रूटीन के डेली मैटर्स हैं वो एक्टिविटीज और टास्क जो हैं वो डेलीगेट करें अपने सबऑर्डिनेट्स को. सो टॉप मैनेजमेंट का बहुत टाइम सेव हो सकता है, और जो टाइम सेव होगा उसको इंटेलेक्चुअल वर्क के लिए दे कैन यूज. It will give your business the characteristics of a well-oiled machine. Very important and very simple, self-explanatory. Poor delegation will get you frustration, poor task execution, and a group of demotivated employees. तो poor delegation जब आप करते हैं तो एम्प्लॉइज में एक बेचैनी हो जाती है, वो टेंशन में चले जाते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज आते हैं टास्क की, एंड देन एम्प्लॉइज का जो मोटिवेशन लेवल है वो डिक्लाइन होता है. तो ऑफ कोर्स एक ऑर्गेनाइजेशन की जो रिप्यूट है, मार्केट रिप्यूट डैमेज होती है, एम्प्लॉइज जो हैं उनका मोरल डाउन होता है, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती है इन केस ऑफ पुअर डेलीगेशन. तो जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट प्लानिंग की, एडमिनिस्ट्रेशन की, सो डेलीगेशन कैन हेल्प हियर if it is done well. लेकिन अगर आप poor delegation करेंगे तो definitely this will create more problems for your organization. I hope कि आज के लेक्चर से हम सब ने जो डिस्कस किया, जो एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने दी, तो आज के लेक्चर से बहुत आपने लर्न किया होगा कि इन डेवलपमेंट प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन आपको डेलीगेशन कैसे हेल्प आउट करती है, कि आप अपने प्लान्स को किस तरह ज़्यादा प्रोएक्टिव बना सकते हैं, आप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह मोस्ट एफिशिएंट इफेक्टिव कर सकते हैं. क्योंकि किसी भी प्लान का और किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ज़्यादा वो डिपेंड करती है कि मुख्तलिफ टास्क को, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को किस तरह डेलीगेट किया जाए, और उससे जो एम्प्लॉइज़ का जो बेस्ट पोटेंशियल है उसको कैसे बाहर लेके आया जाए, उस बेस्ट पोटेंशियल को कैसे अनलॉक किया जाए. Thank you very much for your kind attention. Inshallah, see you all in the next lecture. Khuda Hafiz.